So let's read this question. The question is strengthening of the foundation. Chargaff formulates his rules. Many people believe that James Watson and Francis Crick discovered DNA in 1950s. In reality, this is not the case. DNA was first identified in the late 1860s by Swiss chemist Friedrich Mischer. In the decades following Mischer's discovery, other scientists, Phoebus Leviné and Erwin Chertoff, carried out a series of research efforts that revealed additional details about the DNA molecule, including its primary chemical components and the ways in which they joined each other. Without scientific foundation provided by these pioneers, Watson Crick may never have reached this groundbreaking conclusion of 1953. The DNA molecule exists in the form of three-dimensional double helix, राइट। उन्होंने बताया कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ थ्री डायमेंशनल डबल हेलिक्स। शार्गफ एन Austrian biochemist, as his first step in this DNA research, set out to see whether there was any differences in DNA among different species. After developing a new paper chromatography method for separating and identifying small amounts of organic material, Chargaff reached two major conclusions. The nucleotide composition of DNA varies among species. तो जो न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोजिशन होता है डीएनए में among various species वो डिफर करता है. Almost all DNA, no matter what organism or tissue type it comes from, maintain certain properties even as its composition varies. In particular, amount of adenine is equals to the amount of thymine and amount of guanine approximates the amount of cytosine. Right? In other words, the total amount of purines, A plus G, and total amount of pyrimidines are nearly equal. The conclusion is known as Chargaff's rule. Chargaff's rule is not obeyed in some viruses. These either have single-stranded DNA or RNA as their genetic material, right? Question 1 है segment है DNA का has 100 adenine and 150 cytosine bases. What is the total number of nucleotides present in the segment of DNA? Key concept for this question is Chargaff's rule. Chargaff's rule basically states that हमारे पास जितने भी adenine bases होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, उतने ही थाइमीन बेस होगा, राइट। अगर हमारे पास एडनीन बेसेस 100 है तो थाइमीन बेसेस भी हमारे पास 100 होंगे, राइट। और अगर हमारे पास जो हमारा साइटोसिन बेस है वो 150 है तो हमारे पास गुआनिन जो है, राइट, गुआनिन भी हमारे पास 150 ही होगा। तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे हमें ये बताना है। तो होते क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली फॉर्म होते हैं जब हमारे पास जो हमारा बेस होता है, राइट, बेस के साथ क्या जुड़ जाए, बेस के साथ एक पेंटोज शुगर का मॉलिक्यूल जुड़ जाए और फॉस्फेट जुड़ जाए, फॉस्फेट जुड़ जाए तो हमारे पास उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक, तो कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे, जितने नंबर ऑफ बेसेस होंगे। तो 100 एडनीन, 100 थाइमीन, 150 साइटोसिन, 150 गुआनिन, कितना हो जाएगा, 300, 400, 500। 500 हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होंगे किसमें, हमारे सेगमेंट ऑफ डीएनए में। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो which one is the complementary base of cytosine in one strand to that
in other strand of DNA. Option A, adenine. Option B, guanine. Option C, thymine. Option D, uracil. The key concept for this question is complementary bases. बताना है साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री बेस क्या होगा। साइटोसिन के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है वो होता है ग्वानीन। क्या होता है? ग्वानीन। करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 3 में। द सैंपल ऑफ अ वायरस वाज टेस्टेड एंड इट वाज फाउंड टू कंटेन 20% adenine, 20% thymine, 20% guanine, and rest is cytosine. Is the genetic material of this virus DNA double helix, DNA single helix, RNA? What do you infer from this data? Right? फिर हमें बताना है how can Chargaff's rule be used to infer that genetic material of an organism is double helix or single helix? The key concept for this question is Chargaff's rule. तो Chargaff's rule की बात करें तो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हमारे पास डीएनए में जब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा, डीएनए का जब भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होगा तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एडेनिन मॉलिक्यूल्स होंगे, जो जितने नंबर ऑफ एडेनिन बेसिस होंगे किसके बराबर होंगे? थायमीन बेसिस के। और जो हमारे नंबर ऑफ ग्वानिन बेसिस होंगे, जो नंबर ऑफ ग्वानिन बेसिस होंगे वो बराबर होंगे किसके? वो बराबर होंगे साइटोसिन के। किसके बराबर होंगे? वो बराबर होंगे नंबर ऑफ साइटोसिन बेसिस के। ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो 20% क्या है? एडनीन है। राइट। 20% थाइमीन है, यानी एडनीन और थाइमीन तो वो हमारे पास इक्वल है। हमारे पास बाकी 20% है वो हमारा ग्वानिन है और 40% साइटोसिन है। ठीक है। तो जो हमारे पास ग्वानिन है और जो हमारा साइटोसिन है वो इक्वल नहीं है। इस वजह से ये हम बोलेंगे कि डबल हेलिक्स तो नहीं है हमारे पास। डबल हेलिक्स तो नहीं है हमारे वायरस का जेनेटिक मटेरियल। तो ए ऑप्शन गलत हो गया। फिर है कि या तो वो आरएनए हो सकता है, राइट, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। बट अगर बात करें आरएनए की तो उसमें कौन सा बेस होता है? यूरेसिल होता है, उसमें थायमीन नहीं होता। तो इस सिंस यहाँ पे थायमीन है तो यूरेसिल नहीं है, इस वजह से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए नहीं होगा। क्या पॉसिबिलिटी बचती है? जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल हेलिक्स डीएनए का होगा। क्या होगा? सिंगल हेलिक्स होगा डीएनए का। ठीक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी वाला। ठीक। फिर है हाउ कैन चारगिव्स रूल बी यूज्ड टू इन्फर दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डबल हेलिक्स और सिंगल हेलिक्स। सी हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल वो डबल हेलिक्स है या सिंगल हेलिक्स है? इसको इन्फर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ चारगिव्स रूल। अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एडेनिन बेसिस है वो बराबर हो जाए नंबर ऑफ थायमीन बेसिस के, नंबर ऑफ ग्वानिन बेसिस जो है ग्वानिन बेसिस जो है बराबर हो जाए नंबर ऑफ साइटोसिन बेसिस के, तो हमारे पास हम बोलेंगे तो हमारे पास होगा डबल हेलिक्स डीएनए।
और अगर वो इक्वल नहीं होंगे तो वो सिंगल हेलिक्स डीएनए होगा। ठीक। आई होप अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल द